Here we go guys, you can see I have taken one capsicum, one large capsicum, a handful of mint and one small onion. इसको मैंने roughly chop कर लिया है. जी हाँ, so first of all we need these 3 green masala for our chicken reshmi kebab. One large capsicum, a handful of mint and one small onion. So now what I'm gonna do, the first step is that here I have taken this food processor or chopper. So I'm going to put all these 3 ingredients in the chopper and I will do the chopperize it. So पहले आपने क्या करना है, इसको chopperize करना है, capsicum, mint and onion. So now I'm going to put all these 3 ingredients in our chopper and I will chopperize it. ठीक है? What is the next step? I will tell you. Here we go guys, you can see I chopperized all these 3 ingredients, capsicum, onion and mint. ठीक है, इस तरह से हो गया. So our first step of reshmi chicken kebab is done. Now what I do, I will take this out in the separate bowl. ठीक है, and now I'm keeping it aside. Now you can see here is the chicken cubes. So this is 1 kilo, यानी कि 1 किलो चिकन है ये, and I take this chicken breast. So chicken breast से बहुत अच्छे बनते हैं रेशमी कबाब. ठीक है, so this is the 1 kg chicken breast and I cut it into the cubes. Now what I do, I will do chopperized it. ठीक है, इसको chopperize करूँगी और फिर इसको अलग से बॉल में निकाल लूँगी. So guys, if you have chicken mince, you can also use the chicken mince. ठीक है, I'm going to make with the 1 kg of chicken. But if you don't have the chicken mince, you can take the chicken breast, do the cube and then chopperize it into the chopper or blender, जो भी आपके पास हो. So now I'm going to make this breast into the mince by chopperized it into the chopper and then I'll show you the next step. Here we go. So guys, you can see I did the chopperized of our chicken breast. ठीक है, इसको अच्छे से मैंने chopperize कर लिया है और आप देखिए इस तरह से इसका mince हो गया. So here आप देख सकते हैं, here is the green masala और here is the chicken. ठीक है, तो इसको इस तरह से इसका mince कर लिया. So ये हमारे 2 स्टेप थे जो हमने complete कर लिए हैं. So now what is the next step? The next step is that what I'm gonna do, I'm going to mix this chicken with the green masala. ठीक है, इसको मिक्स करती हूँ और फिर इसको अगेन मैं चॉपर में डाल के अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, चॉपराइज करूँगी. सो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग दिस चिकन रेशमी कबाब, यू हैव टू डू चॉपराइज द चिकन मिन्स एंड द ग्रीन मसाला एटलीस्ट 2 टाइम. सो इससे क्या होगा, यू विल गेट द गुड टेक्सचर ऑफ योर रेशमी कबाब. So now I'm going to mix these 2 things and chopperize again and then I will show you the final look and then I will tell you what is the next procedure. So stay connected. Hey guys, you can see I mixed this chicken mince and the green masala very well. Now this is the time we have to add our ingredients in it या spices. ठीक है, so इसमें क्या क्या spices जाएंगे, let me show you. First of all I'm going to add salt as per your taste and you know कि मैं यहाँ पे I have added this pink Himalayan salt. ठीक है, और you can use any salt you use like table salt जो white वाला होता है. ठीक है, ये हो गया. Now another spices is पिसा हुआ जीरा 1.5 teaspoon. ठीक है, पिसा हुआ जीरा यानी कि क्यूमिन पाउडर. इसमें जाएगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर पाउडर, ये चली गई. और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर. अच्छा, ये जो स्पाइसेस है इसको आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक मोर स्पाइसी फूड यू कैन एडजस्ट एज पर योर टेस्ट. ठीक है, ये चला गया. इसमें जाएगा अराउंड 60 ग्राम ऑफ बटर. बटर से बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा और जो इसकी जो एक रेशमी सी लुक आती है, जो टेस्ट आता है, इट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बटर. अराउंड 60 ग्राम ऑफ बटर ये चला गया. एंड नाउ 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट. ठीक है, तो मेरे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स है तो अराउंड 1 टेबल स्पून. आपको पता है मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट मीट में ज़्यादा क्वांटिटी में डालना अच्छा लगता है, तो ये चला गया इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट. एंड व्हाट नेक्स्ट इज़ गरम मसाला पाउडर अराउंड 1 टीस्पून. ठीक है, बट अगेन इफ़ यू लाइक मोर थीका, बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको पसंद है, so you can adjust as per your taste. ठीक है, और अब इसमें जाएगा कोकोनट पाउडर. कोकोनट पाउडर ले सकते हैं या डेसिकेटेड जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं
घिसा घिसा सा ना इस तरह से, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें ही जाएगा 2.5 टेबल स्पून, ठीक है, ये चला गया। सो गाइस आपने देखा कि ये थे इसके all the ingredients, all the spices for our today's recipe, which is chicken reshmi kebab. And now what I'm gonna do, first of all I'm going to mix it with the spoon, and now again I will put it into the chopper. तो इसको अच्छे से chopperize करती हूँ। And now what will be the next step, I will tell you. First I am going to chopperize it, so all the ingredients will mix very well. So stay tuned and stay connected. Here we go. So guys you can see our रेशमी चिकन कबाब इज़ रेडी। और इसके बाद हमने क्या करना, अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने सारी चीज़ों को जो भी ग्रीन मसाला था और जो उसमें स्पाइसेस ऐड किए थे उसको अच्छे से मैंने चॉपराइज कर लिया है। आफ्टर चॉपराइज इट विल लुक्स लाइक दैट, ठीक है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। सो अब हमने क्या करना है, वी गिव एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स, ठीक है, हाँ कम से कम 2 आवर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में, ठीक है। रेस्ट देना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सम रेस्ट टू दिस मीन्स, सो ऑल द स्पाइसेस विल गेट वेरी वेल एंड पेनिट्रेट इन द मीन्स, और अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है, नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द फ्रिज फॉर अबाउट 2 आवर्स, देन आई विल मेक द कबाब एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन मेक द कबाब एंड हाउ वी कैन स्टोर देम, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द फ्रिज एंड आई विल सी यू आफ्टर 2 आवर्स। सो गाइस अब देखिए मैं बनाने जा रही हूँ इसके कबाब। सो इसको कैसा शेप देना है, इट्स वेरी सिंपल। स्पून से आपने इस तरह से ले लेना है, ये देखें, और इसको फिर लंबाई में ऐसे ऐसे दे देना है। थोड़ा सा अगर स्टिकी लगेगा तो दैट्स ओके। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है इफ़ यू नीड, बट आई डोंट नीड। ये देखें इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी, ठीक है। तो चलें इस तरह से मैं सारे कबाब को रेडी करती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। सो गाइस यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे जो रेशमी कबाब है उसको मैंने रख दिया है ऑयल में, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ऑलिव ऑयल, बट यू कैन यूज़ एनी ऑयल। सो बस इस तरह से हम इसको बना लेंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको अपनी सर्वर प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साइजेस भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटे चाहिए बड़े चाहिए, तो भी डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू वांट बिगर साइज यू कैन मेक बिग, यू वांट स्मॉल साइज यू कैन मेक द स्मॉल साइज, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो अब मैं इसको पकाऊंगी इतना कि इट विल गेट द ब्यूटीफुल गोल्डन कलर, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पक रहे हैं। अब इधर आप देख सकते हैं कि ये है मेरे पास रिमेनिंग जो रेशमी कबाब है वो। अब इसको मैं करूँगी फ्रीज़। तो इसको फ्रीज़ कैसे करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके सारे लंबे लंबे कबाब बना के एक ट्रे पे रखूँगी, ठीक है। और ट्रे में रखने के बाद मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो चलें मैं इसके इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं लंबे लंबे शेप में इसके कबाब बनाने जा रही हूँ विद दिस रिमेनिंग मिन्स, और उसके बाद मैं फ्रीज़र में रखूँगी। फिर इसको कैसे हम फ्रीज़ करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। Hey guys, you can see I have make some kebab and I put it on the tray. So आपने make sure करना है जब भी आप कबाब बनाएंगे don't put the kebab very closely. Otherwise जब आप ये फ्रीज होके निकलेंगे तो it will be very hard to get them out, ठीक है, और इसको separate करना मुश्किल हो जाएगा। So make sure when you are going to freeze the kebab must give the spaces like that. So now I'm going to put this tray into the refrigerator and then I will show you how we can freeze them. So stay connected. Hey guys, you can see these are the frozen kebab. So मैंने इसको फ्रीज़र में रख दी थी, इस तरह से ये फ्रीज़ हो गया। इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। ये थोड़े से इस तरह से टाइट होंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा सा स्पून लेके ना और ऐसे कर लेंगे। तो ये मैंने इसको भी बनाया था, ये इस तरह से आसानी से ये आ जाएंगे बाहर, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो बस इस तरह से ये आ जाएंगे सारे कबाब। उसके आपने क्या करना है, आपने कि ये जिप लॉक बैग जो है इसमें आप रख दें इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने एक बैच जो रेडी किया था ये वो है। तो बस इस तरह से सारे कबाब आप बैग में करके रख दें, ये देखें इस तरह से। तो ये भी सिर्फ एक रेडी हुई है मेरी, बाकी जो है अभी अंदर है। इस तरह से बस इसमें रख के जिप लॉक को इस तरह से जिप लॉक कर दें और इसको फ्रीज़र में रख दें, चाहे तो नाम लिख दें यहाँ पे। तो यू कैन स्टोर द कबाब इन दिस वे एंड इट विल बी
absolutely fine. Hey guys, you can see these are the frozen kebab. So मैंने इसको फ्रीज़र में रख दी थी, इस तरह से ये फ्रीज़ हो गया. इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे. ठीक है, ये थोड़े से इस तरह से टाइट होंगे. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा सा स्पून लेके ना और ऐसे कर लेते हैं. तो ये मैंने इसको भी बनाया था. ये इस तरह से आसानी से ये आ जाएंगे बाहर. ठीक है, क्योंकि मैं भी एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो हार्ड हो रहा है. ठीक है, तो बस इस तरह से ये आ जाएंगे सारे कबाब. उसके आपने क्या करना है, आपने कि ये जिप लॉक बैग जो है इसमें आप रख दें इस तरह से. देखिए, तो ये मैंने एक बैच जो रेडी किया था ये वो है. तो बस इस तरह से सारे कबाब आप बैग में करके रख दें. ये देखें इस तरह से. तो ये भी सिर्फ एक ट्रे रेडी हुई है मेरी, बाकी जो है अभी अंदर है. इस तरह से बस इसमें रख के जिप लॉक को इस तरह से जिप लॉक कर दें और इसको फ्रीज़र में रख दें. चाहे तो नाम लिख दें यहाँ पे. तो यू कैन स्टोर द kebab in this way and it will be absolutely fine. So guys, like in this way you can store the kebab. So अभी मेरा एक बैच है ये, बाकी फ्रीज़र में. सो आई विल डू द सेम प्रोसीजर. आई जस्ट वांट टू टेल यू, इस तरह से आपने इसमें रखा, जिप लॉक किया और इसको फ्रीज़र में रख दें. एंड यू कैन यूज़ दिस कबाब अप टू 1 month. जी हाँ, 1 month तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. सो ये था स्टोरेज का मेथड. So guys, you can see here is the final look of our today's recipe, which is chicken reshmi kebab. So आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट से ये बन गए एंड इट लुक्स सो यम्मी, सो टेम्पटिंग. और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा बिकॉज आई रियली लव टू हेयर यू गाइस कि आपको कैसा लगा. तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन रेशमी कबाब की एंड आई एम श्योर कि यू पीपल लाइक इट. तो गाइस, ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन रेशमी कबाब की एंड आई एम श्योर यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड लाइक माय वीडियो. एंड एनीवन इफ you haven't subscribed my channel or new at my channel, so please do it now. The subscription button is just right here and click on the bell icon so you will get the notification of my all upcoming videos. So in this way you will not miss any video or you will be free here. And you can also follow me on the Instagram. The button is just right here. If you have any questions, any query, want to know any new recipe और जो भी आपको पूछना चाहते हैं, you can ask me in the Instagram. और ये कि अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. इंशाअल्लाह ताला I will see you in next video. Till then, Allah Hafiz. Take very good care of yourself.